Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials, and I'm your mentor for current affairs and legal GK, and we are back with a new video. So guys, in today's video we are going to discuss about the important MCQs on May that are relevant for your various law entrance examinations. So let's start with our video. So if we read the question number one, so it is, when is International Biodiversity Day 2024 celebrated recently? So it was celebrated on 22nd of May. And if we talk about theme, so इस बार का theme था be a part of the plan. If we see the next question, which position has India got in recent World Press Freedom Index 2024? So it was 159th, and among 180 countries, India got 159th rank, and ये release की जाती है by the Reporters Without Borders. If we see the next question, recently UNICEF India has appointed whom as its brand ambassador. तो करीना कपूर खान को यूनिसेफ का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. एंड यूनिसेफ को एक नोबेल पीस प्राइज मिला था 1965, विच इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस. If we see the next question, where is Saxkam Valley located, which recently became the site of dispute between India and China? तो ये सक्सकाम जो वैली है, ये कहाँ पे लोकेट की गई है? तो ये लोकेटेड है इन द काराकोरम रेंज. एंड ऑल्सो अगर हम इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें, सो इंडिया has launched a strong response against China against their illegal attempts to change facts regarding मीन्स जो कंस्ट्रक्शंस हो रही है एक्टिविटीज इन सक्सम वैली में, तो उसको लेके और सियाचिन मीन्स आसपास सियाचिन ग्लेशियर को लेके वहां पे कुछ साइड डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अब in which state has the Nilgiri Tar survey been conducted recently under the supervision of IUCN? तो कहाँ पे किया गया था? इन तमिलनाडु. ये 3 day का था. ऑफ द स्टेट एनिमल मीन्स जो IUCN इज रिलेटेड टू जो एनिमल सर्वे का ऑब्जेक्टिव ये था टू बेटर कंजर्व दिस एंडेंजर्ड स्पीशीज, मीन जो स्पीशीज खत्म होते जाते हैं ज्यादा, उनको बचाने के लिए, जो बहुत रेयर बचते हैं उनको बचाने के लिए कंडक्ट किया जाता है. अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु प्रेजेंटली, तो वो है हमारे M.K. Stalin. Now, if we see our next question, so it is, recently the government of India has got the rights of कान के सांत तोराई पोर्ट रिनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? तो कहाँ का मिला है? सो इट इज ऑफ श्रीलंका. ठीक है, तो श्रीलंका का ये पोर्ट है जिसका रिनोवेशन प्रोजेक्ट मिला है इंडिया को. एंड ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर इंडियन फाइनेंशियल ग्रांट. अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की बात करें तो वो है रानिल विक्रमसिंघे. Now, the next is, according to the report released by Halim, which state has the highest GST collection in April? सबसे ज्यादा GST कलेक्ट किया गया है इन महाराष्ट्र. What is GST? Goods, gross goods and service tax. And जो हाईएस्ट जो कलेक्शन किया गया है वो है अबाउट ₹2.10 लाख करोड़. ठीक है, तो इतना आया है. महाराष्ट्र का आया है 37,671. कर्नाटका की आई है सेकेंड प्लेस, फिर गुजरात की आई है थर्ड प्लेस. ठीक है. The next is, recently which country has announced the release of a new 100 note depicting the Indian territory? तो नेपाल ने फाइनली नेपाल इंडियन टेरिटरी होएगी उसके 100th नोट पे. एंड ऑल्सो जैसे कि कुछ इंडियन टेरिटरीज जैसे लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, इन सब का मैप होगा ऑन द नोट ऑफ नेपाल. ठीक है, लेकिन ये इनिशिएटिव ये था, ये जो अपोज किया गया था बाय इंडिया, एंड इंडिया इंक्लूडेड दिस 3 parts in its map in November 2019. Now next is, where was a school on wheels पाल inaugurated रिसेंटली? तो ये किया गया है इनॉग्रेट इन मणिपुर. अगर हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो मणिपुर गवर्नमेंट अनुसुईया उइके inaugurated the school in wheels at a function held in Imphal. According to the recently report release, who will become India's top trading partner country in the financial year 2023 and 2024? तो चाइना बना है the India's top trading partner country. And अगर हम important fact देखें तो according to data from economic think tank Global Trade Research Initiative,
China has emerged as largest trading partner with financial year 23-24 में सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया की चाइना से हुई है। एंड यूएसए आई है सेकेंड प्लेस में एंड यूएई आई है थर्ड प्लेस पे। नाउ किसकी चेयरमैनशिप के अंदर G7 समिट हेल्ड किया गया था इन 2024? तो वो किया गया था बाय इटली। तो इटली ने इसको हेल्ड किया था। एंड गाइस, वी आर गोइंग टू ब्रिंग G7 summits video very soon. So guys, updated with the video, उसमें हम पूरा G7 के बारे में कवर करेंगे एंड जो प्रेजेंट मीटिंग हुई है G7 की हम उसको भी उसमें कवर करेंगे। नाउ अगर हम फैक्ट्स देखें तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी हैज इनवाइटेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब इंडिया इसका मेंबर नहीं था लेकिन इंडिया को इनवाइट किया गया था एज अ इनवाइटेड गेस्ट। नरेंद्र मोदी टू द ग्रुप ऑफ 7 outreach sessions to be held in Borgo Ignazia Apulia, Italy from 13th to 15th of June में हुआ था। 2023 जो G7 था उस पर किसकी लीडरशिप थी या वो किसकी चेयरमैनशिप में था? वो जापान के चेयरमैनशिप में था। Now, where was the fourth international conference on nuclear security of the International Atomic Energy Agency held recently? तो वो हुआ था in the Vienna. Now next, who has named the cyclone Ramal that recently hit the Bay of Bengal? तो बे ऑफ बंगाल में जो रैमल साइक्लोन आया था वो नाम किसने दिया था? क्योंकि साइक्लोन्स के नेम भी दिए जाते हैं, तो वो दिया गया था ओमान ने। कब आया था? 25 मई को आया था। ठीक है। अब अगर हम इसका मीनिंग देखें, मीनिंग अगर रेमाल का मीनिंग अरेबिक में होता है सैंड। Now, who has recently climbed Mount Everest for a record 30th time? 30th time किसने किया है? That is Kamirita Sherpa. इनने 30th time Mount Everest climb किया है। Now, who is the first German writer to be awarded the International Booker Prize 2024 recently? तो वो है हमारी गेनी अरपेनबाके। इन्होंने क्या लिखी है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 मीन्स उनको अवार्ड किया गया है। ये फर्स्ट जर्मन राइटर है। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also, don't forget to share the video. And guys, stay updated with us. जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि हम G7 समिट की वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन भी कवर करने वाले हैं एंड जो 2024 में जो समिट हेल्ड हुआ था G7 का वो भी कवर करेंगे। So stay updated with us. Thank you.